اقتصادی پسماندگی پاکستان جن علاقوں پر مشتمل تھا وہ اقتصادی اور صنعتی لحاظ سے انتہائی پسماندہ تھا۔ ہندو انگریز گٹھ چھوڑ کے سبب یہ علاقے خام مال کی پیداوار اور فوجی بھرتی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئے تھے۔ بیرونی تجارت زیادہ تر ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی اور وہ بھارت کے پاس چلی گئی تھی۔ 1949 میں کشیدگی کے سبب جب بھارت نے پاکستانی مال کی خریداری بند کر دی تو دوسری منڈیاں تلاش کی گئیں۔ صنعتوں کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ بھارت بنیادی قسم کی صنعتیں رکھتا تھا مگر پاکستان ان سے محروم تھا۔ ایک اندازے کے مطابق برصغیر کے کل 394 سوتی کپڑے کے کارخانوں میں سے صرف 14 پاکستان کے حصے میں آئے۔ ریشمی یا اونی کپڑا تیار کرنے کا کوئی کارخانہ نہ تھا۔ سیمنٹ سازی کا صرف ایک کارخانہ تھا۔ اگرچہ اس صنعت کے لیے جسے چونے کے پتھر، جپسم اور خاص مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی وافر مقدار ملک کے اندر موجود تھی۔ کاغذ سازی کا کوئی کارخانہ نہ تھا۔ یہی حال بناسپتی گھی کی صنعت کا تھا۔ البتہ راولپنڈی میں تیل صاف کرنے کا ایک کارخانہ موجود تھا۔ چینی کے 9 کارخانے پاکستان کے حصے میں آئے۔ ان میں سے 3 مغربی پاکستان میں اور 6 مشرقی بنگال میں تھے۔ پیداوار 30,000 ٹن سالانہ تھی۔ بجلی کی کل نصب شدہ قوت 75,000 کلو واٹ تھی، جس میں مشرقی بنگال میں تقریباً 15,500 کلو واٹ تھی۔ ہندوؤں نے جان بوجھ کر صنعتی کارخانے ان علاقوں میں لگائے جہاں ان کی اکثریت تھی۔ صنعتی پسماندگی کے علاوہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے ادارے بھی بہت کم تھے۔ مغربی پاکستان میں منظور شدہ بینکوں کی 487 شاخیں تھیں، جو تقسیم کے وقت صرف 69 رہ گئیں۔ پنجاب بینک کے علاوہ تمام بینکوں کے صدر دفتر بھارت میں تھے۔ پنجاب بینک کا صدر دفتر بھی بھارت چلا گیا۔ ان بینکوں کو زیادہ تر ہندو چلاتے تھے، اس لیے ان کے تمام اثاثے اور روپیہ آزادی سے چند ماہ پیشتر بھارت منتقل کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں ہندوؤں کے چلے جانے کی وجہ سے ان اداروں میں تربیت یافتہ ماہر عملے کی سخت کمی واقع ہوئی، جس سے بینکوں کی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے گاندھی نے یہ سازش تیار کی تھی کہ ہندو مسلمان صوبوں سے اپنا سرمایہ لے کر ہندو صوبوں میں جا کر آباد ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں تجارتی ڈھانچہ تباہ ہو جائے، اور چونکہ مسلمان تجارت کرنا نہیں جانتے اس لیے یہ ملک چل نہ سکے گا۔ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں صنعتی کارخانے لگانے میں بڑی دشواریاں پیدا ہوئیں۔ بھارت میں ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل ورکس اور بنگال اسٹیل کارپوریشن اور شپ یارڈ جیسے ادارے موجود تھے، جن کا اس وقت تک پاکستان میں تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ بھارتی شپ یارڈ نے جنگ عظیم کے دوران 2000 چھوٹے جہاز تیار کیے تھے۔ آزادی کے وقت پاکستان کے تمام حصے یکساں طور پر پسماندہ تھے۔ مغربی پاکستان کے بعض حصے صنعتی ترقی میں نسبتاً آگے تھے، اس کے برعکس مشرقی بنگال میں جدید صنعت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کی حیثیت کلکتہ کے عقبی علاقے ہی کی رہی۔ نقل و حمل اور مواصلات کی صورتیں ابتدائی شکل میں تھیں۔ کوئلہ، گیس، تیل، بجلی اور پانی وغیرہ کے قدرتی ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ غیر منقسم بنگال کے 90% صنعتی ادارے کلکتہ یا آس پاس کے علاقے میں واقع تھے۔ صنعتی کارکنوں میں صرف 5% کا تعلق مشرقی بنگال سے تھا۔ دنیا کی 75% پروڈکشن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر اس پر اجارہ داری مغربی بنگال کی تھی۔ پروڈکشن کا کوئی کارخانہ نہ تھا۔ گانٹھیں باندھنے والی مشینیں بھی نہ چند تھیں۔ پروڈکشن کی ساری پیداوار کلکتہ بھیج دی جاتی تھی، جہاں سے اس کو بیرونی ملکوں میں روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان کی 87% آبادی دیہاتوں میں رہتی تھی۔ فی کس سالانہ آمدنی 237 روپیہ تھی۔ ملک کی آمدن کا غالب حصہ زراعتی شعبے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ خام پروڈکشن کی 60 لاکھ اور روئی کی 16 لاکھ گانٹھیں درآمد کی جانی تھی۔ شرح خواندگی صرف 16% تھی، جو اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ جغرافیائی مشکلات پاکستان کے تمام علاقے ساتھ ساتھ نہ تھے، بلکہ یہ حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک کا نام مغربی پاکستان تھا، دوسرے کا نام مشرقی بنگال تھا۔
मशरकी बंगाल को मशरकी पाकिस्तान का नाम बाद में मिला। दोनों बाजुओं के दरमियान 1000 मील का भारत का दुश्मन इलाका हायल था। एक ही मुल्क के दो हिस्से, और वो भी इतने फासले पर, इससे बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई। दोनों हिस्सों के दरमियान इस्लाम के मुश्तरका रिश्ते के अलावा हालात में जमीन और आसमान का फर्क था। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ नस्लों से था। हर एक का तारीखी पस मंजर, लसानी और तहजीबी खाक और तमद्दन जुदागाना था। बंगालियों पर हिंदू तहजीब और तमद्दन का असर खासा गहरा था। इनको हकीकी मायनों में आज़ादी और खुद मुख्तारी कभी नसीब ना हुई थी। इन पर कभी जात पात वाले हिंदू हुक्मरान थे, कभी पठान और मुगल, और आखिर में अंग्रेज आए। मगरबी पाकिस्तान चूंकि बर सगीर के दरवाजे पर था, इसलिए हमलावर कुव्वतें अपने निशानात छोड़ती चली गईं। नस्लों में मिलाप पैदा हुआ, ख्यालात, नुक्ता नजर और रहन सहन में यकसानियत पैदा हुई। इसलिए दोनों के रहन सहन और कल्चर में बड़ा फर्क था। दोनों की ज़बानें और रस्म ख़त जुदागाना थे। बंगाली ज़बान का अदबी सरमाया हिंदू अदीबों और ने तैयार किया था। नाच गाना बंगाली माशरे का आम दस्तूर था, जबकि मगरबी पाकिस्तान में के मुसलमान इसको बुरा समझते थे। एक हिस्से की आम खुराक चावल, दूसरे की गंदम थी। मशरकी बंगाल दरिया गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा इलाका है और एक स्पॉट मैदान है। पहाड़ी इलाका बहुत कम है, हजारों नदी नाले बहते हैं, समुद्री तूफान आते रहते हैं, 88 इंच सालाना बारिश होती है। मगरबी पाकिस्तान की सतह बहुत तनू पाया जाता है। इसके शुमाल में हिमालय और कराकरम के बुलंद सिलसिले हैं, जिनकी चोटियां 25,000 फुट से भी ज्यादा ऊंची हैं। ये चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। तकसीम के वक्त मगरबी पाकिस्तान फाजिल गंदम पैदा करता था, जो अमूमन 4 लाख टन सालाना ज्यादा होती थी। लेकिन मशरकी बंगाल में बुनियादी ज़रूरत चावल की थी। मशरकी बंगाल में मादनियात की इस कदर कमी थी कि वहां नमक जैसी रोजमर्रा की चीज भी दस्तियाब न होती थी। इसकी तमाम खाम पैदावार भारत के काम आती थी। जोग्राफी फासला और कल्चरल तफरीक का सबब बन सकता था। इससे फायदा उठाकर दोनों हिस्सों के दरमियान शक व शुबहात पैदा किए जा सकते थे। इन मुतजाद अनासर में कौमी गानगत और एक जैसी का एहसास पैदा करना बड़ा कठिन काम था। नीज दोनों इलाकों के दरमियान गैर की मौजूदगी ने दिफा के मसले को बड़ा पेचीदा बना दिया था। इसके हर बाजू की हिफाजत मजमूई दफाई नुकसान के मुताबिक करना लाजमी थी। दस्तूर से महरूमी एक और जो हमारा मसला था पाकिस्तान बनने के वक्त। पाकिस्तान की कौमी सियासत का अहम आगाज ही जिन अवामी ने बड़ी परेशानी और दुश्वारी से दो चार किया, इनमें एक अहम अमिल आइन साजी के सिलसिले में मुसलसल और ला हासिल जदोजहद थी। क्या में पाकिस्तान के वक्त इस नई मिल्कियत का अपना कोई आइन न था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बाद तरमीम के साथ पाकिस्तान के ने काम चलाने के लिए बतौर आइन इख्तियार कर लिया था। क्योंकि पुराना कानून एक आज़ाद और जदीद मिल्कियत की आइनी हुकूमत के तमाम तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता था, इसलिए आम कौमी एहसास से अहम आइन की जरूरत थी। पाकिस्तान की पहली दस्तूर असम्बली को मुल्क के लिए आइन तैयार करना और कानून साजी का काम करना था। पाकिस्तान के आइन के बारे में कायदे-ए-आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान का दस्तूर भी असम्बली ने तैयार करना है। मैं नहीं जानता इसकी शक्ल क्या होगी, लेकिन ये इस्लाम के बुनियादी असूलों पर मबनी एक जमहूरी आइन होगा। ये असूल जिंदगी में आज भी इसी तरह काबिल अमल है जिस तरह 13 सदी पहले से इस्लाम ने हमें जमहूरियत का सबक दिया है। नहरी पानी का झगड़ा। नहरी पानी का मसला रेड कर्फ की धांधली और गलत हदबंदी की पैदावार है। इसने भारत को कश्मीर तक रास्ता देने के लिए मुसलमान अक्सरियत वाले पेशतर इलाके भारत के हवाले कर दिए थे। इस तरह पाकिस्तान के इलाके को सराब करने वाली नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया। पाकिस्तान का इलाका ज़रूरी पैदावार का इलाका है, जहाँ पाशी का दामोदर नहरों पर था, जो पाकिस्तान में बहने वाले 5 दरियों से निकाली गई थी। इनमें से 2 दरिया रावी और सतलुज भारतीय पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल होते थे। रेड कर्फ एयर सरहद की हदबंदी इस तरह की कि दरिया रावी पर माधोपुर का हेडवर्क्स और दरिया सतलुज पर फिरोजपुर का हेडवर्क्स भारत में रह गए। माधोपुर हेडवर्क्स के जरिए मरकजी बारी दोआब नहरें निकलती थी। फिरोजपुर हेडवर्क्स से नेपालपुर की नहर निकलती थी, जिससे जनूबी पंजाब और भावलपुर का कुछ इलाका खराब होता था। कोई भी मौजूद मुल्क कभी भी इन तसीलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता, जिनसे लाखों बल्कि करोड़ों लोगों का रिस्क और खुशहाली का निसार हो। लेकिन भारत इंसान दोस्ती के समूह की परवाह नहीं किया करता था।
अप्रैल 1948 में इसने नहरों का पानी बंद करके पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल पैदा कर दिया। इन नहरों के इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई। पाकिस्तान ने गुलाम मोहम्मद की कब्र में वक्त भारत भेजा, लेकिन भारत के साथ बातचीत में कोई सहूलत पैदा करने में नाकाम रहे। इसकी बजाय पाकिस्तान के वो हुकूक भी भारत के हवाले कर आए जो इस दरिया के जहरीन इलाके की ममलिकत के तौर पर हासिल थे। इन्होंने बातचीत के बाद जिस बयान पर दस्तखत किए, इसकी रूह से 3 मशरकी दरियाओं ब्यास, सतलज, रावी पर भारत के दावे को तस्लीम कर लिया गया और पाकिस्तान पर इन नहरों के जरिए फराहम किए जाने पानी की कीमत अदा करने की जिम्मेदारी आयद कर दी गई। इस पर भारत की तसल्ली ना हुई और कदम कदम पर इसने पाकिस्तानी मैशत को महफूज करने के लिए नए मसाइल खड़े किए। भारत इन नहरों के पानी की जरूरत के वक्त रोक लेता था और सैलाब के दिनों में खोल देता था, जिससे इलाके में सैलाबों की सूरत और संगीन रुख अख्तियार कर लेती थी। बिला आखिर आलमी बैंक के तहत ये मामला तय पाया। अब भी बिजली की लोड शेडिंग पाकिस्तानी दरियाओं में पानी की कमी का नतीजा है। रियासतों के इलाहाक का मसला। हिंदुस्तान में रियासतों की तादाद 562 थी। रियासतों का रकबा पूरे हिंदुस्तान इन रियासतों का रकबा पूरे हिंदुस्तान का 1/3 और आबादी 1/4 थी। ये बरतानवी हिंद के इंतजामी ढांचे से बाहर थी और वहां कोई राजा या नवाब हुक्मरान था। रियासतों में 140 रियासतें पूरे तौर पर खुद मुख्तार थी, जिनमें हैदराबाद, मैसूर और कश्मीर काबिल जिक्र थी, जिनका रकबा और आबादी बरतानवी हिंद के सूबे के हम पल्ला थी। रियासतों को कानून इस्तिकलाल की रूह से आज़ादी थी कि वो पाकिस्तान या भारत के साथ इलाहा करें या खुद मुख्तार रहें, मगर इस कानून का मंशा तकाजा यही था कि हर रियासत इस ममलिकत के साथ इलाहा इख्तियार करे जो इससे मुस्तसल हो और अंदरूनी तौर पर इसके अवाम की मंशा, इनकी तहजीब और सकाफत और दीगर बामी रवाबित को भी पेश नजर रखा जाए। इस तरह नजरियात की एतबार से हैदराबाद पाकिस्तान के साथ इलाहाक की ख्वाहिशमंद थी, मगर जोग्राफियाई तौर पर वो पाकिस्तान से मुस्तसल ना थी। रियासत जम्मू कश्मीर जोग्राफियाई महल वकू और रियासती मस्जिदों के मजहब, तहजीब और सकाफत और तस्वाब राय के एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा था। सैयद हसन रियाज पाकिस्तान नागजीर में लिखते हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर के साथ कई सौ मील मुश्तरक है। इसके तमाम दरिया पाकिस्तान में बहते हैं। इसकी तमाम तजारती शानाएं पाकिस्तान से गुजरती हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानी नस्लन एक हैं। जम्मू और कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान है। इनकी तहजीब और तमद्दन एक, इनकी माशी जिंदगी बाहम ऐसी मिली जुली है कि बगैर शदीद ज़रर और नुकसान के जुदाई का तस्वर ही नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि कायदेआज़म को यकीन था कि महाराजा हरि सिंह रहा कि इन रवाबित और जोग्राफियाई कैफियत को मद्देनजर रखकर इलाहा के पाकिस्तान का फैसला करेगा। कायदेआज़म को पूरा यकीन था आबादी और जोग्राफी के कायक और इक़्तिसादी और सकाफती रवाबित, बल्कि महाराजा के अपने खानदान के मफाद पर बेला गौर किया जाए तो बात सब पहलू लाजमन पाकिस्तान से इलाहाक की तरफ रहनुमाई करेंगे। लेकिन बकौल राजा करण सिंह, बापू महाराजा हरि सिंह कट्टर हिंदू थे, इसलिए वो इलाके पाकिस्तान का सोच भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि महाराजा हरि सिंह ने अपने खानदान के मुस्तकबिल और रियासत जम्मू कश्मीर के इलाक पर जम्मू कश्मीर के इलाक को दाव पर लगा दिया, जिसकी सजा आज तक दोनों को मिल रही है। तनाज़ा कश्मीर। जम्मू कश्मीर की रियासत बड़े सगीर जनूबी एशिया की इंतहाई शुमाल में वाक़ है। इसका रकबा 84,471 मुरबा मील है। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी कुल 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें से 85% मुसलमान थे। वादी कश्मीर मुसलमान आबादी के 93%, जम्मू में 61%, गिलगित और बल्तिस्तान में 100% हिस्से थे। जम्मू की जिसमें से जम्मू की पहाड़ियों का सिलसिला जिला सियालकोट से चंद मील के फासले से शुरू हो जाता है और पीर पंजाल की बुलंदियों तक पहुंचता है, जो सतह समंदर से 11,000 फुट बुलंद है। वादी कश्मीर सतह समंदर से 6,000 फुट बुलंद है और दुनिया की जन्नत के लक़ब से याद की जाती है। लद्दाख भी कश्मीर का एक हिस्सा है। शुमार में चकमेस की तरफ लद्दाख के साथ
तिब्बत से मिलती है, शुमाल में जमहूरियत चीन का सूबा सिंकियांग, शुमाल मगरब में ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान है, जनूबी सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है जो 1500 किलोमीटर लंबी है। सिंध और झेलम और चनाब दरिया कश्मीर ही से निकलते हैं जो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहते हैं। पहाड़ों के रुख और दरियाओं के बहाव ने कश्मीर और पाकिस्तान को एक जोग्राफियाई खिता बना दिया है। वो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का भी एक कुदरती हिस्सा है। तारीखी तमदनी और मजहबी एतबार से कश्मीर और पाकिस्तान के मुसलमान एक दूसरे से वाबस्ता हैं। आज़ादी से पहले कश्मीर की तमाम दरामदी और बरामदी तिजारत पाकिस्तान के रास्ते हुआ करती थी। इसके जंगलात की लकड़ी दरियाओं में डाल दी जाती थी और पाकिस्तानी पंजाब के मैदान में बाहर निकाल ली जाती थी। बस कश्मीर जोग्राफियाई, मजहबी और इक़्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान का कुदरती हिस्सा और इसकी शहरक है। कश्मीर मुगल सल्तनत का एक सूबा था। बाद में ये अफगानिस्तान के बादशाह मशरफ अली की सल्तनत का एक सूबा बना। 1819 में रणजीत सिंह ने कश्मीर फतह करके सिख सल्तनत में शामिल कर लिया। सिखों की पहली लड़ाई में जीत अंग्रेजों को हुई, जिन्होंने 16 मार्च 1840 को 75 लाख रुपया लेकर कश्मीर की वादी महाराजा गुलाब सिंह डोगरा के हवाले कर दी। उसने 9 नवंबर 1840 को कश्मीर को दारुल हुकूमत श्रीनगर पर कब्जा किया। अंग्रेजी फौज इसके साथ थी। इस वक्त से डोगर राज की सूरत में कश्मीर के मुसलमानों की तारीख का भयानक दौर शुरू हुआ। 1931 में कश्मीर के मुसलमानों ने डोगरा राजस्व से आज़ादी की तारीख शुरू की। इसको दबाने के लिए डोगरा फौज और पुलिस ने मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म किए। इसके बाद कश्मीर के मुसलमान हिंदू डोगरा हुक्मरानों से निजात हासिल करने की कोशिश करते रहे। शेख अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास ने मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, मगर बाद में चौधरी गुलाम अब्बास ने शेख अब्दुल्ला से अलग होकर मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तालबेल डाली। आज़ादी के बाद बरतानी हिंदुस्तान की रियासतों को इख्तियार दिया गया था कि अपने मखसूस हालात और जोग्राफिक पोजीशन को सामने रखते हुए चाहे पाकिस्तान के साथ इलाक़ करें और चाहे हिंदुस्तान के साथ। माउंटबेटन ने भी इंतकाल इक़्तिदार से सिर्फ 20 रोज पहले रियासतों के हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। 25 जुलाई 1947 में वालियान रियासत को मशवरा दिया गया कि वो अपने जोग्राफियाई हालात और आबादी के रुझानात को पेश नजर रखते हुए पाकिस्तान या भारत में से किसी एक मुल्क के साथ इल्हाक का फैसला करें। ये दोनों बातें कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हक में जाती थी। भारत के कश्मीर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ इस छोटे से पुल के जरिए था जो दरिया रावी के हिस्से पर बना हुआ है, जो मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर की तहसील पठानकोट को जम्मू से मिलाता है। कश्मीरी मुसलमान रियासत का इलाक़ा पाकिस्तान के साथ चाहते थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 19 जुलाई 1947 को कश्मीर की पाकिस्तान के साथ इलाक़े की करारदाद मंजूर की। भारत के साथ जम्मू कश्मीर का इलाक़ा हासिल करने की पहली शर्त ये थी कि तहसील पठानकोट भारत में शामिल हो जाए। इसके बाद दूसरी शर्त ये कि जब महाराजा कश्मीर के लिए दोनों मुल्कों में अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाब करने का वक्त आए तो भारत को पाकिस्तान पर तरजीह दे। जब रेडक्लिफ कमीशन के सामने मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो भारतीय लीडरों को यकीन था कि पहली शर्त पूरी हो जाएगी। अंग्रेजी लीडरों ने जुलाई ही में महाराजा को राम करने की जबरदस्त कोशिशें शुरू कर दी। जुलाई में कांग्रेस का सदर आचार्य करपलानी श्रीनगर गया और महाराजा से मिला। अगस्त के शुरू में गांधी ने कश्मीर का दौरा किया और महाराजा को भारत से इलाक़े के हक में फैसला करने पर आमादा किया। 21 जुलाई को माउंटबेटन भी खुद श्रीनगर पहुंचा और 3 दिन वहां ठहरा। वो नाम दोनों मुल्कों को लेता था, मगर इसकी तमाम कोशिश ज्यादा से ज्यादा रियासतों को भारत के साथ मुआहदा करने की थी। श्रीनगर भी वो महाराजा कश्मीर को ही मशवरा देने गया था। लॉर्ड इस्मे ने कश्मीर का दौरा किया। मशरकी पंजाब की गैर हिंदू और सिख रियासतों के राजा कश्मीर के हुक्मरान से मिलने गए। बरसगीर बरतानी इक़्तिदार के खात्मे के बाद डोगरा राजा ने कोई फैसला ना कर सकने का बहाना किया और पाकिस्तान के साथ हालात जो के तू रखने का मुआहदा कर लिया, जिसके मुताबिक दोनों के दरमियान डाक मौसलात और कसरी की यूनियन हो गई। अलायद ने जाहिर किया कि मुआहदा महज धोखा था। भारत पठानकोट जम्मू के लिए नए पुल की तमीर के लिए सामान पहले ही से जमा कर रहा था। रेडक्लिफ अवार्ड के ऐलान के साथ ही इस पुल की तमीर का काम तेजी से शुरू हो गया। इसके अलावा रियासत के जनूबी हिस्से में जो मशरकी पंजाब की तरफ से मिला और सड़कों की तमीर का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। महाराजा ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कश्मीर में हिंदुओं की इबादतकारी शुरू कर दी। मुसलमान फौज और पुलिस को निकाल दिया गया मुसलमानों को फौज और पुलिस से निकाल दिया गया और मुसलमानों के हथियार जब्त कर लिए। मशरकी पंजाब की सिख रियासतों से सिपाही राष्ट्रीय सिर्फ एक सिंह के रजाकार और दूसरे हिंदू और सिख ग्रोह
दर गरोह जम्मू में जमा होने लगे। शेख अब्दुल्ला चौधरी गुलाम अब्बास मुतालबा कर रहे थे कि रियासत में नुमाइंदा हुकूमत कायम की जाए जो अवाम की राय से इलाहाक का फैसला करे। अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने तरीके से नाकामानी शुरू कर दी, जिस पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। महाराजा ने वज़ीर आज़म कश्मीर पंडित रामचंद्र काक को, जो एक मगरब का पढ़ा लिखा कश्मीरी ब्राह्मण था और जिसने अमली जरूरियात को सामने रखते हुए कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाहाक की सिफारिश की थी, अचानक इस ओहदे से बरतरफ कर दिया और डोगरा जनरल जंग सिंह को ये ओहदा दिया। 15 अक्टूबर 1947 को इसने महाचंद महाजन को नया वज़ीर आज़म बनाया, जिसने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मजम्मत की। इधर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी काबीना में गोपाल स्वामी अटेंगर को वजीर बेमहकमा के तौर पर लिया। ये शख्स ब्राह्मण था और अपनी मुस्लिम दुश्मनी के लिए बदनाम था। वो 1937 से 1943 तक कश्मीर का वज़ीर आज़म रह चुका था। भारत के दिफाई कमेटी में गोपाल स्वामी अटेंगर भी शामिल था। इलाका हासिल करने के वीपी मेनन को भेजा गया और साथ ही फौजी नकलो हरकत शुरू हुई, जिसकी निगरानी माउंटबेटन कर रहा था। कश्मीर के मुसलमानों ने पूरी रियासत में यौम पाकिस्तान मनाकर अपने जज्बात का इजहार किया। इस पर महाराजा कश्मीर ने पूंछ और जम्मू के इलाके में फौज भेज दी, जिसने मुसलमानों के कत्लेआम और लूटमार का बाजार गर्म किया। एक अंदाजे के मुताबिक अरब से शुरू होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम से कोई 11 हफ्ते के अरसे में 5 लाख मुसलमान घरों से निकाल दी गए। इनमें से 2 लाख अफराद का पता ही नहीं चल सका, या तो वो शहीद कर दिए गए या भूख, बीमारी और मौसमी हालात के सबब मर गए, जबकि बाकी मगरबी पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर बना लेने पर मजबूर हो गए। इस जालमाना कार्रवाई के नतीजे में तहरीक आज़ादी कश्मीर की सूरत आज़ादी की तहरीक आज़ादी कश्मीर की सूरत इख्तियार कर ली। इन लोगों के पास अलसरे की कमी थी, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों से हथियार मंगवाने के लिए आदमी भेजे और यूं इस इलाके में पठान मुजाहिदीन की मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ। मुजाहिदीन श्रीनगर के करीब पहुंच गए और महाराजा श्रीनगर से भाग कर जम्मू चला गया।